لوگوں کے سامنے، کیونکہ اتنا یہ لمبا یہی ٹاپک چلا جائے گا. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے خواب کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن انشاءاللہ کہیں اور بھی بات آئے گی تو پھر میں آپ کو اور بھی اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل بتا دوں گی. اب ایک اور حدیث میں ہے کہ سچا خواب، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ سچا خواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات میں آتا ہے کہ خوشخبریاں انسان کو ملتی ہیں. تو حدیث میں ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ رات جاگنے والا، اب یہ آج کل کے بچے جو پوری راتیں جا کے گیمز کھیلتے ہیں وہ بات نہیں ہے، تہجد گزار، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کا خواب سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہا کہ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے اپنے خواب کسی کو بتا دیتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے. پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے ہی خواب آتا ہے صبح اٹھتے سب سے پہلے ہر ایک کو دوست ملی اس کو بتا دیتے ہوئے پتا مجھے یہ خواب آیا تھا. تو میں بتاؤ ذرا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. پھر جو الٹی پلٹی اس کی وہ ہے نا تعبیر ہوتی ہے ہر کوئی وہ بتا دیتا ہے. اور یہ اتنی غلط بات ہے کہ جو تعبیر آپ کو بتائے گا نا وہی ہو جائے گی، وہی ہو جائے گی. اس لیے میک شیور کیا کریں اگر کوئی ایسا خواب آتا ہے، کیونکہ آج کل کوئی ملتا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ بتائیں گے تو وہ کوئی آپ کو صحیح تعبیر بتا سکے گا. یہ اس کے بارے میں بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک وہ پرندے کے پاؤں میں معلق رہتا ہے، اور جب وہ بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے. یہ بات غور سے سن لیں. اگر آپ فار ایگزامپل میں ہوں، آپ بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ نے مجھے خواب سنایا کہ تجھے پتہ ہے یہ خواب ہے، اور میں نے اس کو ہائے یہ خواب ہے، اس کا تو بڑا برا مطلب ہے، یہ تو کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گی. اتنا یہ یہ مذاق نہیں ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے. اور کہتے ہیں کہ خواب کس کو سنانا چاہیے، کہ کوئی صالح دوست ہے اس کو آپ سنا سکتے ہیں، یا باعمل عالم اس کو آپ سنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتی الامکان نیکی پر گمان کر کے اچھی تعبیر بتائیں گے. کیونکہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے نا، جیسے اگر کوئی آپ کو خواب سنائے، فار ایگزامپل آپ کا لو ون ہوگا، فار ایگزامپل آپ مدر، میرا بچہ مجھے کوئی ایسا خواب سناتا ہے، ماما آج مجھے یہ خواب آیا، تو میں کیا کہوں گی کہ نہیں بیٹا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر، اس کا مطلب اچھا ہے، اس میں یہ ہوگا. تو ایسے جو آپ کا خیر خواہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کو آپ خواب سنا سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ لوگوں کو اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ کہو. اب امام سیرین جو ہے نا، ان کی کتاب ہے کتاب الرؤیا، میرے پاس بھی ہے. میں ایک زمانے میں مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ خواب ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے یا کیا ہے. تو امام سیرین جو تھے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انس بن مالک، ان کے آزاد کردہ غلام تھے. اور ان کی والدہ جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی لونڈی تھی. ان کی کنیت بھی ابوبکر تھی. یہ بتانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس پائے کے لوگ ہوتے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. ہم ہر ایک سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حالانکہ چھوٹی عمر میں یہ غلامی کی ان کی عمر تھی، لیکن اللہ نے جو علم کا دریا بہایا ہوا تھا ان پہ، اتنے بڑے فقیہ اور عالم تھے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے کہ جیسے آسمان دنیا پہ چمکتا ہوا ستارہ تھے. تو ان کے بارے میں ان کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے بزنس کرنے کے لیے 40,000 درہم کا غلہ خریدا. جیسے جب خریدا تو ان کو پتہ لگا کہیں سے کہ یہ غلہ جو انہوں نے خریدا نا، اس کی کاشت ٹھیک نہیں ہوئی ہے. اس شک کی بنا پہ انہوں نے وہ سارا غلہ بیچنے بجائے کہ وہ بیچتے، بزنس مین تھے، انہوں نے وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا. اب کر دیا تو جو پیسے انہوں نے جن سے غلہ خریدا تھا، لیا تھا، ان کو انہوں نے پیسے دینے تھے. اب وہ کسی عورت سے انہوں نے بائی کیا تھا، اور اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سارے کے سارے پیسے اس کو واپس کرتے. تو اس عورت نے ان کے خلاف مقدمہ کیا تو ان کو جیل کی سزا ہوئی تھی. تو یہ جب تک ان کے سارے جو پیسے پورے نہیں ہوئے، انہوں نے وہ جیل کا ٹائم گزارا تھا. اتنا زہد، اتنا تقویٰ ان لوگوں میں ہوتا تھا. حقائق میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں امام سیرین جو تھے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک آدمی آیا، آ کے اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی اذان، جیسے میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے اس کو دیکھا، اس سے بات کی، اور اس کے بعد کہا کہ
तुम हज पे जाओगे, मुबारक हो। तो आदमी बड़ा खुश हुआ। अच्छा, वो आदमी चला गया। अब कहते हैं कि स्टूडेंट बैठे हुए थे ना, क्योंकि तो कुछ देर के बाद एक और आदमी आया, तो उसने भी सेम ही तरह की ख्वाब सुनाई कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं नमाज की अजान दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसको देखा, उससे बात की, जाना थोड़ा उसको ना, तो उसको कहने लगे कि तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। अब वो तो चला गया, परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि दुआ करो, ये वो। तो जब वो चला गया तो स्टूडेंट ने पूछा कि दो लोग आए आपके पास और दोनों ने एक ही तरह का आपको ख्वाब सुनाया, तो एक को आपने ये कह दिया, एक को आपने ये कह दिया। तो उन्होंने इमाम सीरी ने कहा कि ख्वाब जिस इंसान को आता है ना, उसका करेक्टर, उसका लेन देन, उसकी एक अपनी आदत अमल करने का कि वो कैसा है, ये भी देखा जाता है। और पहले आदमी को जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि सूरत हज की वो आया है, क्योंकि देखिए ख्वाबों की ताबीर भी असल वो कहाँ से लेते हैं, कुरान और सुन्ना से। और उन्होंने कौन सी इससे ली कि ये ख्वाब की ताबीर उन्होंने सूरत हज की वो साल से ली कि ए पैगंबर लोगों को हज का ऐलान कर दो। तो ऐलान है ना, तो उससे उन्होंने इसकी ताबीर ली कि ये हज पे जाएगा। और दूसरे को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे ज़हन में, क्योंकि अभी हम सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ये वाला वाक़या आएगा। तो उन्होंने कहा कि उनके ज़हन में जब उसके कैरेक्टर देखा सारा, तो उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम का सूरह यूसुफ की वो आयत याद आ गई जिसमें कहा कि एक मुनादी ने मुनादी की कि ए काफले वालों तुम चोर हो। तो उससे उन्होंने उसके ख्वाब की इस तरह से ताबीर की थी। तो ख्वाबों की ताबीर कोई आसान काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम होता है जिसको ये अल्लाह अता कर देते हैं। अब देखिए दूसरा ये कि इमाम सीरी ने बताया कि कौन सा ख्वाब सच्चा होता है, क्योंकि हम जब रात को सोते हैं कई दफ़ा हमें होता है कि अच्छा मैं जब सुबह उठ रही थी ना तहज्जुद के टाइम पे, उस वक्त मुझे ये ख्वाब आया था। कभी हम कहते हैं अच्छा मेरा ख्याल आधी रात का टाइम था जब मुझे ख्वाब आया। तो इमाम सीरी ने उसको वजाहत की है कि जो ख्वाब रात के पहले हिस्से में आ जाए ना, फ़ौरन ही आ जाता है, तो उसकी ताबीर जो है वो 5 साल में होती है। और जो ख्वाब आधी रात में दिखाई दे उसकी ताबीर 5 महीने में होती है। और जो ख्वाब तहज्जुद के वक्त में दिखाई दे उसकी ताबीर जो है वो 10 दिन में ज़ाहिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि तहज्जुद का वक्त जो होता है ना, उस वक्त फरिश्ते नाजिल हो रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। तो यूजुअली उस वक्त जो ख्वाब आते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशखबरियों की होते हैं, मुबश्शरात होते हैं। अब एक और बात थी कि किन को ख्वाब नहीं सुनाना चाहिए। तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो बेदीन है, जो शरीयत पे अमल करने वाला नहीं है, आपको पता है, आप देख के भी आपको पता चल जाता है कि ये अमल इसका ठीक नहीं है, तो उसको ख्वाब नहीं सुनाना चाहिए। उसको कहाँ पता होगा कि ख्वाब की ताबीर क्या है। दूसरा ये कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक है ना कि ये मुझसे हसद करता है या मेरा दुश्मन है या उसके मेरे टर्म अच्छे नहीं है, कभी उसको भी ख्वाब नहीं सुनाए, क्योंकि अगर उसने मुंह से कुछ बोल दिया तो हो जाएगा। बस मेरा कहने का ये मतलब है, आपको पूरी जो चीज़ मैंने बताई है उसका असल यही है कि अगर आपको ख्वाब आता है, डू नॉट टेल एनीवन, सिवाय इसके कि आप अपने लव वन को, जो आपको पता है कि आपके लव वन है, उनको आप सुना सकते हो, वो भी अच्छा ख्वाब। बुरा ख्वाब ना सुनाएं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पी जाए उसको, क्योंकि रसूल अल्लाह ने बता दिया ना कि वो ख्वाब जो है वो मुअल्लक रहता है, तब तक वो होगा ही नहीं इंशाल्लाह। और अगर जैसे आप डर जाएं ख्वाब में, तो आपने अपने लेफ्ट साइड पे 3 दफ़ा थू करना है, आउज़ुबिल्लाह पढ़नी है, अल्लाह से पनाह मांगनी है, दूसरी साइड करवट लेके आपने सो जाना है, और फिर सुबह उठ के आप सदका दे दें, 2 नफल पढ़ लें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर होना भी होता है तो वो रुक जाता है। तो ये थी ख्वाबों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप इंशाल्लाह दैट विल हेल्प। तो अब यहाँ पे वो अपने बेटे से कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझे चुन लेगा और तुझे सिखाएगा ख्वाबों की ताबीर, वयुतिम्म नेमतहू, और तुझ पर पूरी करेगा अपनी नेमत। अब देखिए ये वाला वर्ड जो है ना, मैं देख रही थी कि इतने मतलब खुशी की बात थी उन हज़रत यकूब अलैहि। देखिए हमें से हर कोई ये चाहता है कि हम कोई ऐसा अमल करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस कबूल कर लें, और कुछ ऐसा हो जाए कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। मसनद अहमद की रवायत है 976, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की अयादत के लिए जाता है ना, तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। किसके लिए मांगते हैं? जो अयादत के लिए जाता है। अगर वो सुबह के वक्त जाता है तो रात तक, और अगर वो रात को जाता है तो सुबह तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और 1 नहीं 2 नहीं,
10 नहीं, 70,000 फरिश्ते। हमें और क्या चाहिए? हमें तो मौका मिलना चाहिए। अगर कोई बीमार है, यूजुअली हमारे घरों में अगर बड़े रहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो अगर हम सुबह उठ के उनकी इयादत के लिए जाएं, सिर्फ ये सोच के आप देखें कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए मगफरत की दुआ करते हैं। इतने खूबसूरत मौके अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ज़िंदगी में अता करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें अमल करने वाला बना दे। कोई हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ करो, फरिश्ते ही नाजिल हो जाए। सॉरी, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पे ऐसा करे कि कोई पहाड़ी तुम सोने का बना के दिखा दो। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे नंबर 1 ये कि अजाब का फैसला हो चुका है। अब ये उस वक़्त तो हो चुका, तो थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि नंबर 2 ये था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फैसला कर लिया था कि अब मुसलमान जो है वो यहाँ से मक्का से हिजरत करेंगे मदीना की तरफ। क्योंकि अजाब इसलिए नहीं आया, ये हम पहले पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था क्योंकि तुम्हारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और अगर वो मौजूद है तो वहाँ पे अजाब नहीं आ सकता। हज़रत अली की वो हदीस भी आपको वो कॉल याद होगा ना, कि उन्होंने कहा था कि लोगों अब इस्तगफार को पकड़ लो, क्योंकि 2 ही चीज़ें, एक तो नबी बीच में हो तो नहीं अजाब आता, और दूसरा अगर इस्तगफार को तुम पकड़ लो। तो यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेकंड ये कहा कि इनके लिए हुक्म हो चुका कि अब ये बहुत जल्द जो है ये वहाँ से हिजरत करने वाले हैं। और तीसरी बात ये थी कि अजाब क्या आया था फ़ौरन बाद ही। देखें, जैसे ये मदीना में गए हैं मुसलमान, तो पहली जंग, क्योंकि मक्का में तो कोई जंग नहीं हुई थी। अब सोचिए 13 साल, लोग कहते हैं ना कि मुसलमान जो थे इन्होंने तो इतनी जंगें की, इतना खून खराबा किया, ये वो। 13 साल तक मुसलमान अजाब, उनके साथ जो कुफार के जुल्म थे ना, वो कुफार के जुल्म सहते सहते इतने बुरी तरह से कि लेकिन इनको इजाज़त नहीं थी कि ये अपना हाथ उठाए। कुफू आइदियाहुम, इनको ये हुक्म था, कोई एक जंग, कोई एक लड़ाई आपके सामने नहीं होगी। हाँ, ये होगा कि कुफार जो थे, मुशरिकीन मक्का ने जुल्म किया, लेकिन इन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया। राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब, क्योंकि जब ये मदीना में गए, एक आज़ाद रियासत बन गई, तो अब जंगों का सिलसिला शुरू होना था। तो पहली ही जो जंग बदर हुई थी, इसमें इनके बड़े बड़े लोग जो थे वो मारे गए थे, जो इनके सरदार थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया फला तस्ताजिलू हो, तो देखो तुम उसकी जल्दी ना करो, क्योंकि ये अजाब तो आने ही वाला है, क्योंकि फैसला हो चुका है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, कि पाक है, वो बुलंद तर है उससे जो तुम शरीक ठहराते हो। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी मददगार की ज़रूरत नहीं है। आयतुल कुर्सी, एक दफ़ा उसका तर्जुमा फिर से जब भी ऐसी कोई आया आती है ना, तो ज़रूर पढ़ा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं तो औलाद नहीं दे सकता, तो फ़लाँ पीर के पास चले जाना, वो तुम्हें औलाद दे देगा। मैं तो तुम्हें रिस्क नहीं दे सकता, फ़लाँ कब्र वाले के पास जाना, वो गंज बख्श है, वो तुम्हें सारा कुछ ही अता कर देगा। फ़लाँ के पास चले जाना, वो तुम्हें फ़लाँ अता कर देगा। नहीं, व तआला अम्मा युशरिकून, वो बहुत बुलंद है उससे जो तुम शरीक ठहराते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमानों के साथ भी ये हुआ ना, क्योंकि हम इतने सालों तक इकट्ठे रहे थे हिंदुस्तान में, जो हिंदू थे उनके साथ रहते थे, तो वही चीज़ें जो हमें ये लगता था उनकी तो देवियाँ थी। अब हम अपने आप को देखें ना, उस ज़माने में भी तो यही था ना कि इन्होंने डिफरेंट इन्होंने देखा, अच्छा ये जो है ये दौलत की देवी है, तो ये फ़लाँ चीज़ की देवी है, तो ये फ़लाँ चीज़ की देवी, हज़ारों उन्होंने बुत बना के रखे हुए थे अपने। तो हमने भी ये सोचा कि अच्छा यही काम शायद होता है, तो अच्छा ये कब्र वाले हमें ये दे देंगे, ये कब्र वालों से ये दुआ मांग लो, उस बाबा से ये दुआ मांग लो, तो वो पूरी कर देंगे। तो वो फ़र्क लेवल का रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि हर ज़माने के बुत फ़र्क होते हैं, तुम गौर तो करो कि तुम क्या कर रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 2 में, युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, कि वो नाजिल करता है फरिश्तों को बिर्रूही, साथ वही के। अब ये बिर्रूह जो है ना, ये कुरान में 3 तरह से आया, डिफरेंट तरह से। अगर एक नंबर 1 ये कि देखें, हमारे अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना, पर मुझे इतनी प्यारी आया लगती है, इसका तर्जुमा कैसे भी आप कर लें, लेकिन इतना प्यार आता है, वह नुफ़िख़ फ़ीही मिन रूहिही, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रूह, अपनी तरफ से, अपने अमर से, अपने हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी थी ना। तो
उसको किसी भी एंगल से आप उसका तर्जुमा कर लेना तो दिल में एक अजीब सी मोहब्बत आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में और हम में जो रूह है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना लोगों ने रूह के बारे में, उन्होंने कहा था मुझे कोई इसका इल्म नहीं, जितना पूछने वाले ने मुझसे सवाल किया जितना उसको इल्म है उतना ही मुझे है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया सवाए इसके। हमें मुझे और आपको क्या पता है कि रूह जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। हमारा जिस्म जो है वो मिट्टी से बना है ना, इसीलिए हमारी ख्वाहिशात भी सारी की सारी मिट्टी के साथ ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बाद जो रूह है ना वो हमारी प्यासी होती है। हम क्यों, आप देखें जब हम कोई चीज़ ऐसी सुनते हैं, जब हम कुरान की क्लास में जाते हैं तो एकदम से हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारी रूह प्यासी होती है। ये जो कलाम है ना वो भी ऊपर से ही नाजिल हुआ, वही अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आई ना, फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे। तो वो कनेक्शन वहाँ पे आ जाता है तो एकदम से लगता है कि कोई बिछड़ा हुआ दोस्त नहीं जैसे मिल जाता, बिल्कुल वो हाल होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप इसको समझेंगे अच्छे से। पहले आप देखें युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूही कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वो उतारते हैं, मतलब अल्लाह सुब्हाना ताला उतारते हैं फरिश्तों को बिर्रूही साथ रूह के साथ वही के मिन अमरी ही अपने हुक्म से अला मन यशा जिस पर वो चाहते हैं। आज आप पर अगर वही नाजिल हो रही है ना इस तरह से, कुरान आपकी ज़िंदगी में खुला है तो मिन अमरी ही पे आप अंडरलाइन करें और अपना नाम लिखें। अल्लाह सुब्हाना ताला चुन लेता है बंदों को मिन इबाद ही, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अल्लाह सुब्हाना ताला वही नाजिल फरमाता है। नबियों की बात हो रही है ना, लेकिन जो कुरान हमारी ज़िंदगियों में खुला है तो ये भी तो अल्लाह का अमर है ना। वो अब फिर आगे मैं इंशाल्लाह बताती हूँ वजह क्या है। तो अब आप देखिए कि रूह जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेरिका में हैं, अगर मुझे याद है जब हम नए नए आए थे उस वक्त तो इतनी अमेरिका में लोग नहीं होते थे, तो जैसे हम बाहर जाते थे ना शॉपिंग करने, दूर कोई हमें पाकिस्तानी मिलता था, नज़र आता था, तो नज़र कैसे आता था, पाकिस्तानी पता चल जाए या तो शलवार कमीज़ पहनी है या उनका कोई ऐसा देखने में लगता था कि ये पाकिस्तान से। तो अब बिलीव करें इतनी खुशी होती थी, स्पेशली अगर आप हलाल मीट, एक तो दूर दूर दुकानें होती थी, आप ढूंढ के वहाँ जाते हैं तो कोई और फैमिली भी खड़ी है तो एकदम से आप मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम कहते हैं उनको, और फिर आप कहाँ से आए। और इतने सालों के बाद आप अगर किसी से बात करेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ हम दो दोस्तों से बात करो, तो जब मैं नई नई आई थी ना तो ये मुझे वहाँ पे मिली थी और वो दोस्तियाँ भी चल रही होती थी। तो आप लोग क्यों मिलते हैं, क्यों ऐसे आप फीलिंग होती है, इस वजह से कि वो भी मेरी ही जगह का रिलेशन लगता है ना कि हाय मेरे मुल्क का है ये, तो एक मोहब्बत होती है। इसी तरह से जब हम कुरान की क्लास में होते हैं, जब हम कुरान खोल के पढ़ रहे होते हैं या हम कुरान से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं ना, हमारी रूह ऐसे खुश होती है जैसे उसको उसका कोई दोस्त मिल गया, उसका कोई जानने वाला मिल गया, और वो फिर उसके साथ ऐसे लगता है कि घंटों इसको मैं देखती रहूँ, इससे बातें करती रहूँ, अपनी उदासी दूर करूँ। अच्छा, अब हमारे ज़हन में ये भी आ सकता है कि ज़रूरी तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं होते, हर एक की ज़िंदगी में कुरान अगर कहते हैं तो क्लास में आओ तो कोई भी नहीं आता, अगर उनको कहते हैं कुरान की ये बात तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे भी तो होता है ना। तो आप इसको इस तरह से समझें कि वो लोग जो कुरान की बात नहीं सुनना चाहते, वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात, जैसे हम ये कहते हैं कि हाय हमने ये तलावत सुनी बहुत मज़ा आया, लेकिन हर एक को तो मज़ा नहीं आ रहा होता, तो ये क्यों ऐसा है। आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसी मिसाल को आप सोचें कि अगर आप बाहर गए हैं, आप किसी पाकिस्तानी को उस हाल में देखती हैं कि जिन्होंने अपने आप को 100% रंग लिया है अमेरिका की रंग में, ठीक है, उसका हुलिया भी बदला हुआ है, उसकी तरीका भी सारा बदला हुआ है। अब वो जैसे ही किसी को प्रैक्टिसिंग मुसलमान को देखेगा ना कि कोई हिजाब में है या अपने आप को कवर ऐसे किया हुआ है, तो वो आंखें चुराना शुरू हो जाएगा, वो कभी आपको आगे बढ़ के नहीं मिलेगा। दे थिंक कि ओ या तो वो शर्मिंदा होगा, और अगर शर्मिंदा नहीं है ना तो वो ये कहेगा कि ओ आई एम डिफरेंट, मुझे इनसे बात नहीं करनी, तो वो अपनी रूट को ही नहीं पहचानेगा। उसकी रूह इतनी, वो कहते हैं ना कि गुनाहों में दब जाता है बंदा, जैसे उस तरह वाला हाल होता है कि वो बंदा दूसरे को नहीं पहचानता। चलो आप यहाँ को छोड़ दो, आप पाकिस्तान की बात कर लो, आप वहाँ पे भी आप देखें कई दफ़ा आपको लोगों की नज़रें चुराने से पता चल जाता है कि ये कोई पाकिस्तानी है या ये अपना कोई मुसलमान है, पता चल जाता है, क्योंकि गैरों को तो कोई परवाह भी नहीं होती कि आप कैसे हो।
कई दफ़ा लोग ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको अपनी असल याद नहीं होती और उनकी रूह उससे तर ही नहीं होती, उनकी रूह को मज़ा ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो गुनाहों में इतना लिपट गई होती है कि उसके अंदर खैर ही नहीं जा रही होती। ये होता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल ना करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इज़्ज़त अता करना कि हम अपनी रूह को पाक रख सकें, क्योंकि हर वो दिल जो गुनाहों से पाक होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उसी दिल में आएंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि गुनाहगार दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला आ जाए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने दिल को पाक और साफ़ करते रहें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नाजिल करते हैं फरिश्तों को बिरूही, साथ वही के, मिन अमरी ही, अपने हुक्म से, अला मन यशा, जिसे वो चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी चुन ले, आमीन सुम आमीन, मिन इबाद ही, अपने बंदों से। क्यों ऐसा कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला? अन अनज़िरू, कि तुम डराओ उन लोगों को, अन्नहु, के बेशक वो, ला इलाहा इल्ला अना। आप ये भी देखें कि हम हमेशा पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा नहीं है कोई, ला इलाहा इल्ला अना, कि कोई माबूद नहीं है सवाए मेरे, फत्तकूनी, तो बस मुझी से डरो। पैगाम क्या देना है लोगों को? अल्लाह सुब्हानहू तआला से डराना। डराना क्या होता है? अल्लाह से तो डराने की कोई बात है ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतनी प्यार करने वाले हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं। तो अगर आप इसके आगे ये लिखते हैं फत्तकूनी, तो बस मुझी से डरो। लेकिन अगर ये जो आप अंजार का लफ्ज़ है ना, अंजार कहते हैं आगाह कर दो, लोगों को बता दो। देखिए जो अंजार करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में फॉर एग्जांपल अभी अल्लाह ना करे पता है कि एक हरिकेन आना है, तो पहले से टीवी में आना शुरू हो जाए कि हरिकेन बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो आप अपने आप को सेव कर लो, इस इलाके से बाहर आ जाओ, या सैलाब आ रहा है इस एरिया में, इसको खाली कर दो। तो आप क्या उनको बुरा समझेंगे? वो तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं ना। तो यही अंसार होता है कि लोगों को बता दो कि जो कुछ ये दुनिया में कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, लोगों का असल घर आखिरत में है, जन्नत में है। और ये जो रास्ता है ना हदायत का, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लास्ट प्रॉफिट थे, और उसके बाद जो भी दाई दीन है उसका यही काम है। और हर मुसलमान दाई दीन है, हर मुसलमान, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा दाई दीन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हर आने वाला, हर अपने बाद आने वाले को ये पैगाम दे के जाए कि हदायत का रास्ता कौन सा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वही, ये कुरान पाक हम सब के हाथ में दे दिया। और ये बहुत आसान है, क्योंकि हमें अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान को समझने के लिए आपको तो किसी की ज़रूरत है, आप खुद समझेंगे भटक जाएंगे। वल्लाही कुरान पाक बहुत आसान है। हाँ, वो जो कानून है ना, जैसे फॉर एग्जांपल विरासत के कानून है, क्योंकि हर घर का तरीका फ़र्क होता है। किसी के घर में 4 बच्चे, तो किसी के घर में 2, तो किसी के घर में लड़का, तो किसी घर में लड़कियां, कई माँ बाप हैं, कई चचा चाची हैं, कई नहीं। तो हर एक की दफ़ा पे रूलिंग फ़र्क होगी। तो उसके लिए जिन्होंने ख़ास तौर पे वो चीज़ों को पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, अपनी ज़िंदगी का वो वक्त लगाया हुआ है, तो अहले इल्म से जाके पूछ लो, राइट। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अमल करने वाली जो चीज़ें हैं ना, जन्नत के जो रास्ते हैं, वो बैना है। वो कोई ऐसी आया नहीं है जिसमें आप ये कहें कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आई। अल्लाह ने कहा है कि झूठ ना बोलो, तो ये किस किस्म का झूठ है जो हम बोल सकते हैं, और किस किस्म के झूठ की इजाज़त है, किसकी नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि अच्छा सूद ना लो, अच्छा कौन से किस्म का ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा चुगली लगानी नहीं बुरी बात है, तो अल्लाह अच्छा कौन सी चुगली लगा सकते हैं, कौन सी नहीं लगा सकते। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सब बैना है। जो अमल की चीज़ें हैं, जो जन्नत के रास्ते हैं, वो बैना है, आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने तुम्हारे लिए कुरान को आसान बनाया, है कोई सीखने वाला। और हमें बार बार एक ही चीज़ बताई जाती है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ख़त, फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मेरी अम्मी है, वो पाकिस्तान में है, फॉर एग्जांपल मैं इधर हूँ, मेरी अम्मी को बहुत इंपॉर्टेंट ख़त मुझे लिख रही हैं और मुझे बता रही हैं कि ये चीज़ों का ख्याल रखना और ये चीज़ों का नहीं। तो मेरी अम्मी सोचेंगी कि अच्छा मैं कोई ऐसी लैंग्वेज में लिखूँ या इस तरह से लिखूँ कि उसको समझ ना आए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये कहाँ भटकते हैं हम लोग।
मेरे रब ने मेरे लिए ये किताब भेजी है अमल करने के लिए, और उसको कह भी दिया कि मैंने इतना आसान बनाया। फिर हमें शैतान बकाता है बड़ा मुश्किल है। आप रमज़ान आ रहा है ना, अभी आप 10 कुरान भी पढ़ के छोड़ लें, कुछ नहीं होना। ऑफ कोर्स उसका साइड इफेक्ट है, आपको एक एक लफ्ज़ पे नेकी मिलेगी, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है तो आप मुझे बताएं कि क्या फ़ायदा उस कुरान को पढ़ने का। इसी वजह से तो आज देखें हमारे इर्द गिर्द में क्या हाल होता है, क्योंकि अमल नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों का बैठना और मेरा पढ़ाना भी कबूल और मंजूर करे, और आप लोगों को भी जो जो लोग शेयर करते हैं दूसरे लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके भी कबूल और मंजूर करे, आमीन। और आप लोग जो इम्तिहान देते हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे, क्योंकि आप इतनी मेहनत से क्लास सुनते हैं, उसके बाद आप इम्तिहान देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली। अब आगे देखिए आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं खलक़स समावाति वल अर्द, क्या लोगो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों किया ऐसा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या तुम्हें दुनिया में भेज के फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या भूल गए हैं कि अच्छा मैं तो बड़ा मसरूफ़ हूँ, तुम इन लोगों के पास जाके अपने काम करा लेना, ये दुआ कबूल कर लेंगे, तुम्हें कोई मुश्किल आएगी तो फ़लाँ के पास जाना, तो मैं तो बड़ा मसरूफ़ हूँ, मुझे ना छेड़ना। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक चीज़ हमें बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या क्या चीज़ें पैदा की हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी पहचान बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरा रब कौन है, तो हमें उससे मोहब्बत उस लेवल की नहीं हो सकती है। हम कहते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन जब हम दिल में देखते हैं तो हम कहते हैं कि अभी तो हमारी वो पहचान क्योंकि वैसे नहीं होती है ना। तो मोहब्बत का वो लेवल कि हमारे आंसू निकलते हैं, कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खशियत से भी रोना शुरू हो जाए, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उस तरह से मोहब्बत हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सूरत के ख़त्म होने तक हमारा वो लेवल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले आएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले तो हमें हमारी औकात याद कराते हैं कि इंसान तू अपनी औकात तो देख के तू क्या चीज़ है, और तू क्या कर रहा है, और कैसे तू अपने रब्बे अजीम, तो अपने रब का हुक्म नहीं मानता। खलक़स समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को बिलहक, हक के साथ, व तआला अम्मा युश्रिकून, अब वो बुलंद है उन चीज़ों से जिसके जो तुम शरीक ठहराते हो। देखो ये सेकंड टाइम आया है, शुरू में पहली आया में भी हमने पढ़ा था ना कि व तआला अम्मा युश्रिकून। अब दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को मकसद से पैदा किया है। अब शुरू देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ से कह रहे हैं कि हर चीज़ का मकसद है, हर मखलूक का मकसद है। इंसान तो अपना मकसद क्यों भूल रहा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं खलक़ल इंसाना, कि पैदा किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को मिन नुतफ़तिन, एक नुतफ़े से। वो ऐसा नुतफ़ा इंसान जिसको जो हाथ को भी लग जाए तो तू 10 दफ़ा हाथ धोए उसको साफ़ करने के लिए। तू अपने आप को, हमने पढ़ा ना कि मट्टी, गारा और बदबूदार मट्टी से तुझे पैदा किया। फ़इज़ा हुआ खसीम मुबीन, तो वो जब वो बड़ा हुआ, चलना फिरना शुरू हुआ, सोचना शुरू हुआ, बात करना शुरू हुआ, तो वो झगड़ालू हो गया। खसीम मुबीन, खुल्लम खुल्ला सख्त झगड़ालू हो गया, अल्लाह के आगे बोलना शुरू। अब देखिए अल्लाह के हुक्म ना मानने के लिए वो कहते हैं ना कि जिद में आ गया कि नहीं मेरे से नहीं नमाज पढ़ी जाती, मुझसे नहीं वुज़ू होता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये वाला काम तो मेरे से नहीं होता। अब देखो ना बच्चों का भी तो ख्याल रखना है ना, बच्चे भी तो माशाल्लाह मतलब अब जवान हो गए, क्या करूं, अब खामन को भी तो देखना है ना, अब घर भी तो अपना देखना है, मैं क्या करूं। कितनी चीज़ों में बहाने पे बहाने पे बहाने बनाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तू अपनी औकात तो देख इंसान, कि तुझे मैंने कैसे पैदा किया था, और फिर तू अल्लाह से लड़ना शुरू हो गया। और अल्लाह वो है, अल्लाह वो है, रब तेरा वो है, वल अनआमा, कि जिसने पैदा किया किसको, चौपाओं को। चौपाए कौन से हैं, जैसे ऊंट है, गाय है, बकरी है, वो सारी चीज़ें। अब देखिए एक लिस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देंगे। वल अनआमा खलक़हा, तो उसको पैदा किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। क्यों पैदा किया, मुझे तो पैदा किया, आपको पैदा किया, इंसानों को, जिन्हों को, हमें ये पता है कि ये सारी कायनात पैदा किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लकुम। अब जहाँ पे लकुम आएगा ना उसके नीचे अपने नाम लिखते हैं, मैं, मेरा, ऐसे लिखते हैं, या लकुम तुम्हारे लिए, मेरे लिए। मेरे लिए लिखेंगे ना तो आप इन आयतों को बहुत इंजॉय करेंगे।
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैंने पैदा किए छुपाए, ऊँट है, गाय है, बकरी है, ये सारी चीज़ें क्यों पैदा की? लाकुम, तुम्हारे लिए, कि मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा की। फीहा दिफ़उन, उसके अंदर गर्मी का सामान है। आजकल सर्दियाँ है ना, तो उसी से तुम ऊन वाले कपड़े बनाते हो, तुम शालें बनाते हो, तुम कोट बनाते हो, तुम फर वाले जूते बनाते हो ताकि तुम्हारे पाँव अंदर से गर्म रहें। क्या क्या चीज़ें तुम बनाते हो, तुम्हें दुनिया में भेज के अल्लाह सुब्हानहू तआला भूल नहीं गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात तुम्हारे लिए बना दी है। इंसान तो इतना कीमती है अपने रब के लिए कि वह मुनाफी हो, और उसमें फ़ायदे भी हैं। किस चीज़ के फ़ायदे? उससे दूध तुम लेते हो, उससे तुम सवारी करते हो, उससे तुम खाते हो, उसका गोश्त तुम खाते हो। व ताकुलूना व मिनहा ताकुलून, और उनसे तुम खाते भी हो। ये एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला भी बता रहे हैं कि तुम देखो तो सही कि तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा कर दी। वलकुम, और फिर देखे दोबारा से, वलकुम, और मेरे लिए है, तुम्हारे लिए वैसे मीनिंग है, और मेरे लिए है, फीहा, इसमें जमालुन, इसमें खूबसूरती भी रखी है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बना दी गंदी मंदी चीज़ें। आँखों को ठंडक पहुँचती है जब हम खूबसूरत चीज़ें देखते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने आप को, अल्लाह का नाम भी है ना जमील, तो कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि इन्नल्लाह जमीलुन, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला जमील हैं, व युहिब्बुल जमाल, और वो खूबसूरती को पसंद भी करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए कि जैसे ही आप देखिए हमारे ज़हन में ना एक नकली सा एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई अल्लाह वाला हो गया या अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ चला गया तो बस उसको अब क्या काम है दुनिया से, वो तो बस बिल्कुल एक सफ़ेद से कपड़े पहन ले, और उसको तो ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें अगर हम देखें कि नेमतें कुछ उसने अप्लाई की हुई हैं तो वो भी कि है इसने तो देखी इसकी ज़िंदगी में, इसको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक जो नकली तकवा होता है ना, वो भी बड़ा, जैसे होता है ना तकब्बर का दिखावा, इसी तरह से दीन का दिखावा भी होता है कि लोग अपने आप को शो करें कि मैं तो बहुत नहीं, मुझे तो ये चीज़ें नहीं चाहिए। आज आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से बयान करते हैं, इंसान तेरे लिए पैदा किया ताकि तू इसको इस्तेमाल करे, तू इनको खाए, इनको पिए, इनको एंजॉय करे और अपने रब का शुक्र अदा करे। बस इतनी सी बात है। अब आके देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलकुम फीहा जमालुन, और उनमें तुम्हारी आँखों के लिए उसमें खूबसूरती भी है। हीना तुरीहूना, जिस वक़्त तुम शाम को चरा कर लाते हो, वहीना तसराहून, और जिस वक़्त तुम सुबह उनको चराने के लिए लेके जाते हो। आप कभी कहते हैं ना कि जो खेती वाला है, जैसे जो जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहते हैं, खेती खेत जिनके पास होते हैं, जो भी कहते हैं कई दफ़ा होता है चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं कि औरतों को कहा ना कि तुम खेती हो अपने खावंद की, तो वो क्या कहते हैं कि कभी माली सॉरी, तो वो कहते हैं ना कि कभी किसी माली से पूछो कि उसके लिए उसका खेत जब वो जो उगाता है वो कितनी मोहब्बत करता है। जब वो एक छोटी सी कॉम्पल निकलती है ना तो उसकी खुशी की इंतहा। आप घर में उगा के देख लें, एक छोटा सा बीज उगा के देखें, जिसको कि पहली कॉम्पल निकलती है ना तो इतनी खुशी होती है जिसकी खादी, फिर वो तनावर दरख्त बनता है, फिर वो पौधे, फिर वो फल निकालते हैं। जैसे फूल अगर निकलते हैं तो किस तरह से निकलते हैं, तो इसी तरह से जब वो जो मालिक होता है ना वो अपनी फॉर एग्जाम्पल बकरियों को चराने लेके जाते हैं। बकरियां बड़ी शरारती होती हैं। देखिए हर नबी ने बकरियां चराई थी, क्योंकि इनको संभालना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि जब इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि जब पहाड़ पे लेके जाते हैं ना, इतनी मेहनत से उनको ऊपर चढ़ाते हैं तो इतनी शरारती होती है कि एक बकरी यूँ करके ना जैसे पाँव ऐसे रख के तो फिसलती है, और जैसे एक फिसलती है तो सारी की सारी उसके पीछे फिसल के आ जाती है। तो ये शरारतें भी करती है, तो इतनी प्यारी लगती है। आप देखिए जब हम बच्चों को ज़ू लेके जाते हैं उनको कितना मज़ा आता है, एक एक चीज़ दिखा रहे होते हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को खूबसूरती पसंद है। कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चीज़ें बनाई हैं, कभी आप तितलियों के रंग देखें, अब फिर सोचें कि माय गॉड, आता है अब तो इंटरनेट पे आ जाती हैं परिंदे, ऐसे ऐसे उनके कलर कॉम्बिनेशंस इतने हसीन जिसकी कोई हद नहीं, देख के आंखों को ठंडक पहुंचती है। आप जानवरों को देख लें, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो पौधे, आप उनके कलर्स, उनकी आप टेस्ट आप देखें, जो अब हम खाते हैं, जो फल हम खाते हैं, जो सब्जी हम खाते हैं, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने वो किस लिए बनाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम्हारे लिए,
तुम्हें इस दुनिया में भेजने से पहले इंसान पूरा बंदोबस्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर दिया। वो आगे देखिए आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व तहमिलु अथकालकुम, ए बंदो मुझे पता है तुम कमज़ोर हो, तुमसे इतना बोझ नहीं उठाया जाएगा, तो वो उठा ले जाते हैं बोझ तुम्हारे इला बालादिन तरफ शहर के लम तकूनो बालिगी ही, कि नहीं तो तुम पहुंचाने वाले से इल्ला बिशक्किल इन अनफुस, के मगर ये कि सख्त मशक्क़त के साथ। देखें एक जगह से दूसरी जगह जब भारी चीज़ें ले जानी होती हैं, अब तो खैर डिफरेंट हो गया ना, लेकिन आप अभी भी गांव वगैरह में देखें तो जिस तरह से इनके ऊपर वज़न डाल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। हम लोगों को अगर एक बाल्टी पानी की उठा के एक सेकंड दूसरी मंजिल पे या एक बाथरूम से दूसरी में ले जाना हो तो घर के मर्दों का इंतज़ार होता है यूजुअली कि अच्छा वो आएंगे या नौकर आएगा तो उसको कहेंगे अच्छा उठा के यहाँ पे ले जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे पहले ही ये बंदोबस्त कर दिया। अब देखिए मुझे याद है अभी तक भी कि एक दफ़ा मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में तो गाड़ी थोड़ी आहिस्ता थी। मुझे आज तक अफसोस है ऑनेस्टली कि मैं उस वक़्त छोटी थी, मैं नहीं रुका सकी वैसे गाड़ी। तो मैंने देखा कि एक रेडी नहीं होती है जैसे, उसको ऊपर इतना सामान था और उसके आगे जो था ना एक बुजुर्ग थे, बूढ़े आदमी थे और वो उसको घसीट के लेके जा रहे थे। वो आज तक वो मंजर मेरी आंख से नहीं हटता कि मैं कहती हूँ कि आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अब यूजुअली पाकिस्तान में आप जब जाते हैं ना शहर की तरफ थोड़ी जाएंगे तो मे भी आपको ऐसा नज़र आए, तो हमेशा रुक जाया करें। ऐसे लोग जो खुद मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत से कमा रहे होते हैं, उनको ज़रूर मदद किया करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे रहम करे, आमीन सुम आमीन। तो मुझे जब भी ऐसी कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे वो वाक़या याद आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतना करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे जानवर भी बनाए जो हमारे लिए ये सारा काम करते हैं। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्यों किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे, इन्ना रब्बकुम, कि बेशक है लोगो तुम्हारा रब, कि मेरा रब जो है ना ला रऊफ़ुर रहीम, कि बड़ा शफ़क़त वाला और निहायत रहम करने वाला है। ये उसका रहमान होना ही है, उसके रहीम होना है कि उसने ये सारा कुछ तुम्हारे लिए किया। और फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, वल खैला, और घोड़े, वल बिगाला, और खच्चर, वल खमीर, वल हमीरा, और गधे, लितरकबूहा, ताकि तुम सवारी करो उन पर। अब देखिए ये जो घोड़े थे ना, ये तो मुशरिकीन मक्का जो थे, अरब जो थे, उनकी खास अभी तक भी सबसे महंगा। अब देखिए घोड़े अभी तक भी इतने महंगे होते हैं और इनकी नस्लों का, इनकी आबाओ-अजदाद का जैसे कहते हैं ना, इनके पास पूरा लिखा होता था कि कहाँ से इनकी नस्ल कहाँ से शुरू और कहाँ तक आई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये सारी सवारियाँ क्यों दी, लितरकबूहा, ताकि तुम सवारी करो इन पर, व ज़ीनतन, दोबारा से देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया और ज़ीनत भी हैं तुम्हारे लिए, व यखलुकु, और वो पैदा करेगा। अब देखिए ये कब आयत नाजिल हो रही है, उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं और वो पैदा करेगा माला तालमून, जो तुम अभी जानते भी नहीं हो। लेकिन आप देखिए अगर उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह देते ना, अच्छा अब गाड़ी आएगी, जहाज़ आएगा, अब इस तरह से चीज़ें बनेंगी, तो हम उस वक़्त लोग सोचते कि पता नहीं क्या चीज़ है, ये क्या बात हो रही है, ये कैसी मखलूक पैदा होगी, ये क्या होगा। अब तो हमें समझ आती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो सारी चीज़ें जो क़यामत तक भी आनी है, हमें नहीं पता कि कौन से कोई ऐसे जानवर दोबारा से आ जाए, हमारे सामने आ जाए जिनका भी हमें नहीं पता, ये ऐसी इजादात आ जाए जो हमें नहीं पता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व यखलुकु मा ला तालमून, और वो पैदा करेगा भी कि जो तुम जानते भी नहीं हो। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अलल्लाहि कस्तुस सबील, कि ए लोगो अल्लाह पर है कस्तुस सबील, सीधा रास्ता। कि तुम इंसान दुनिया में आए हो, दुनिया में रहने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी आसानी के लिए जो इतनी चीज़ें कर दी, इतने रास्ते बता दिए, ये करना है, किस तरह से ये इससे मदद लोगे, तुम्हारी कैसे कैसे ज़रूरतें पूरी होंगी। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तुम्हारा असल घर है, जिस जन्नत में तुमने जाना है, क्या उसका रास्ता तुम्हें नहीं बताएगा? क्या उसमें तुम्हारी मदद नहीं करेगा? जब से दुनिया बनी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नबी, पैगंबर, किताबें, हदायत देने के लिए लोगों को जो भेजा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए नहीं भेजा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे कि तुम ठीक है अब जो करना है तुम करो।
इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आज भी वो कहते हैं ना, अल्लाह इंतज़ार में होता है कि मेरा बंदा किस वक्त वापस मुड़ेगा, कब तौबा करेगा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर दे और उसका असल घर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें उसको भेज दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह पर है, ये अल्लाह के ज़िम्मे है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत के रास्ते खोलता है और बार बार बताते हैं। जो हमें तकलीफ़ें आती हैं, जो हमें दर्द पहुँचता है, जो हमारी इम्तिहान पड़ते हैं ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुबारक चीज़ें होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो हमें छोटी छोटी तरह से जो जोड़ते हैं कि बंदे अभी भी पलटा, ए बंदे अभी भी पलटा। अल्लाह को